दोस्तों 2022 LHC 683 लेटेस्ट फैसला लाहौर हाई कोर्ट का शेख शान इलाई वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। थ्रू दिस जजमेंट I propose to decide writ petition number 30013/2021 and 5734/2021 instituted under Article 199 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 as they involve similar question of law. Brief facts of these cases are as follows. अदालत कह रही है जी दो एक जैसे ही केस हमारे सामने लाए गए हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने FIR एक लॉन्च करवाई पुलिस स्टेशन FIA लाहौर में अगेंस्ट पटिशनर शेख शान इलाई एंड हिज ब्रदर शेख इरफान इलाई फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 17 and 22 ऑफ द इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 alleging that they had received 9 lakhs for sending him abroad England on work visa but did not fulfill their promise. The Federal Investigation Agency investigated the case and found the petitioner and Irfan Alai were innocent and prepared their discharge report. FIA ने जनाब इसके हवाले से की इन्वेस्टिगेशन और पता चला कि ये जो इरफान अलाई हैं और पटिशनर जो है ये दोनों मासूम हैं, बेगुनाह हैं और इनको डिस्चार्ज रिपोर्ट बना दें। Respondent number 7 was not satisfied with the special judge Central Lahore who declared the petitioner and Irfan Alai proclaimed offender as they had proceeded abroad in the meanwhile. Through a subsequent order dated 12/11/2014, the special court directed the Director General FIA to issue necessary caution at all the immigration points in Pakistan. Consequent upon the Deputy Director FIA letter number dated recommended that the petitioner and Irfan Alai be blacklisted under para 5(1) of the Passport and Visa Manual 2006. उनका जनाब इनको कहा गया कि इनको पैरा 51 जो है 51 जो है पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल 2006 का जो एक्ट है उसके तहत इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। He was arrested and produced before the special judge who admitted him to bail and presently he is facing trial. उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको बेल हो गई, अब वो ट्रायल का सामना कर रहा है। लेटर ही रिक्वेस्टेड द FIA अथॉरिटीज़ टू रिमूव हिज नेम फ्रॉम द ब्लैक लिस्ट विच दे डिड। बाद में उन्होंने उससे कहा कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए, तो FIA ने निकाल दिया। पिटिशनर शान इलाई इज स्टिल fugitive from law and is presently in Dubai. His passport expired on 6/4/2020 and could not be renewed owing to blacklisting. जो पिटिशनर शान लाई है वो अभी तक जो है वो उसको मसाइल का सामना है और इस वक्त दुबई में है और उसका पासपोर्ट 6/4/2020 का एक्सपायर हो चुका है ब्लैक लिस्टिंग की वजह से, इसलिए ये पिटिशन दायर की गई है। The petitioner Sayyid Anwar Shah and his wife Farat Anwar are overseas Pakistani and stationed in Saudi Arabia on 24/5/2015। ये एक दूसरी रिट पिटिशन है जी, ये भी सेम है, यही मैटर इसमें भी डिस्कस हुआ है कि उनका पैसे देने थे और उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इस हवाले से तारिक सलीम शेख साहब का जो फ़ैसला आया है उस फैसले में तफसील के साथ बताया गया है कि किसी को सफ़र करने से नहीं रोका जा सकता। The Passport Act does not contain any provision for blacklisting as adumbrated. Section 8 empowers the federal government only to cancel, impound or confiscate a passport. Blacklisting is a separate concept. Okay, ना उसका फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके ज़ब्त कर सकती है, पासपोर्ट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती। ब्लैक लिस्टिंग जो है एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है एंड हैज़ अ डिफरेंट कोनेशन। Merriam Webster Online Dictionary defined blacklist as a list of persons who are disapproved of or are to be punished or boycotted. ब्लैक लिस्ट से मुराद ये लिया गया है, उन्होंने जनाब वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी से ये देखा है
कि वो लोग जो डिसअप्रूव हो चुके हों या जिनको सज़ा हो चुकी हो। अ लिस्ट ऑफ बैंड और एक्सक्लूडेड थिंग्स ऑफ डिसरिप्यूटेबल करैक्टर, ऐसे लोगों की लिस्ट जिसमें जो है वो डिसरिप्यूटेबल करैक्टर के लोग हों। According to Oxford Advanced Learner Dictionary, it is a list of the names of people, companies, products, or countries that an organization or a government consider unacceptable and that must be avoided. ऐसी कंपनी, ऐसे लोग जो अनएक्सेप्टेबल हों, जिनसे अवॉइड किया जाना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ऐसे मुल्कों को भी। Black Law Dictionary states that the aforesaid term means to put the name of a person on a list of those who are disfavored and are therefore to be avoided or punished. तो उन्होंने कहा जनाब डिक्शनरी के मुताबिक तो इसका मतलब ये निकलता है जिनसे अवॉइड किया जाए। इन दिस व्यू ऑफ द मैटर, ब्लैक लिस्टिंग कैन बी इक्वेटेड विद कैंसिलेशन, इम्पाउंडिंग और कॉन्फिस्केशन। उन्होंने कहा ब्लैक लिस्टिंग को कैंसिलेशन, इम्पाउंडिंग या कॉन्फिस्केशन, जब्ती में कैंसिलेशन के मायनों में नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 13 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट स्टेपुलेट्स दैट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द सेड एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर्स द फेडरल गवर्नमेंट फ्रेम्ड पासपोर्ट रूल्स 1974 बाय SRO नंबर 98174 डेटेड 18/7/1974, published in the Gazette of Pakistan 1974, Islamabad. These rules also do not contain any provision for black listing. ये जो रूल है पासपोर्ट एक्ट के तहत, उसमें भी सेक्शन 13 के तहत भी ब्लैक लिस्टिंग के कोई प्रोविजन लाए नहीं करती। नो आई एडवर्ट टू द एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 empower the federal government to prohibit by an order in writing any person or class of person from proceeding abroad, notwithstanding the fact that such person has a valid travel documents. यानी कि उसको नहीं रोका जा सकता जिसके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो। द वर्ड्स एनी पर्सन इन दिस सेट सेक्शन मीन दैट इट कैन बी invoked not only for the citizen of Pakistan but for foreign national as who are in the country for the time being. ये जनाब उन्होंने कहा है कि ब्लैक लिस्टिंग और चीज़ है, कैंसिलेशन और चीज़ है। इसलिए अदालत ने पासपोर्ट कैंसिलेशन को नल एंड वाइड करार दे दिया गया। द नेम ऑफ द पिटिशनर सैयद अनवार शाह वॉज प्लेस ऑन द ब्लैक लिस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ FIA एज ही वॉज ए प्रोक्लेमेड offender in case FIR number this he has surrendered and the competent third court has admitted him to bail. It is true that the case against him has not been decided so far, but that cannot be ground to deprive him of right of travel abroad. इसमें वो दो केसेस की बात हुई है, एक ये इनका अनवार शाह वाला है, एक वो इरफान अलाई वाला है जो है। उन्होंने कहा जनाब उसका ट्रायल चल रहा है, उसको लेकिन ट्रैवल से नहीं रोका जा सकता। There is no denying the fact that it is the public interest that offenders should be brought to justice. क्योंकि जनाब इससे कोई इनकार नहीं है कि जो इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। It is more true in respect of the fugitives from law. Nevertheless, every case has its own facts and the federal government cannot cancel, impound, confiscate or for that matter blacklist a person mechanically. हर केस को उसके मेरिट पर देखना होता है। फेडरल गवर्नमेंट इम्पाउंड, कैंसल, कॉन्फिस्केट या ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती किसी भी शख्स को मैकेनिकल अंदाज में। इट मस्ट थॉरोली एग्जामिन ईच केस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। द सर्कमस्टेंसेस वर सच दैट blacklisting of the petitioner was not warranted. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।